I think हम debate में नहीं हैं, guys. Shehzad, you promised you will not debate. चलिए this was Ladies and gentlemen, welcome to the post-lunch session of Foresight 2025. On behalf of OTV family, this is Shilagna Rautroy, welcoming you all back. Being a quote lover myself, let's start the post-lunch session with one from the legendary Spider-Man. With great power comes great responsibility. And in this age, that superpower is technology and social media. With technology bringing us closer to the world and social media, where millions of people might follow you blindly, believe in everything you say, everything you do, that gives you a demigod status. But if unchecked, that can also be the poison that can corrupt an entire society, system, and generation. Or maybe it has already started. Has it? Is a big question. That's what we're discussing on as the theme is role of social media and technology in politics. And we have some special panelists for this one. A bachelor's degree in law, PG diploma in governance, hands-on experience in media, because he has been working with ZNew and Times Now, and then shifting his gaze to politics and becoming the national spokesperson of Bharatiya Janata Party. The story of this Pune guy has inspired many. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shahzad Poonawalla, our special panelist for this session. Welcome, Shahzad. The daughter of a politician, noted politician and national strategist, late Shri Ahmed Patel ji, politics and love for nation definitely runs in her blood. After a degree in history, advertising and marketing, she finds her true calling in politics, joins Indian National Congress, and today stands tall and proud as the national spokesperson of the party. Ladies and gentlemen, please give it up for Mumtaz Ahmed Patel. Mumtaz, welcome on stage. From Aaj Tak to Z News, he has been disseminating information to the people of the nation with utmost dedication and professionalism, wins hearts with reels, enlightens people with podcasts, and believes in presenting truth without any bias or prejudice. I'm talking about newsreader, podcaster, content creator, Subhankar Mishra. Subhankar, welcome to the show. Can we please have you on stage? He'll be joining us shortly. And moderating this session, our very own Zen G Star, who's been leading this family with new ideas and futuristic leadership, our senior business associate, OTV Network, Litisha Mangat Panda. Litisha, welcome on stage. And over to the moderator for this absolutely thought-provoking session where we talk about role of social media and technology in politics. Over to you, Litisha. Good afternoon, everyone. I hope to keep you awake after a heavy lunch. So let me welcome you to a session where tweets are louder than speeches and hashtags can be more powerful than manifestos. इस विकसित और डिजिटल भारत में जहां हर स्क्रॉल एक कैंपेन का डायरेक्शन बदल सकता है और हर मीम एक मूवमेंट बन सकता है, ये सवाल ज़रूरी है, क्या सोशल मीडिया एक किंग मेकर है या सिर्फ एक नॉइजी एडवाइजर? I am Litisha Mangat Panda, and we have some of the brightest minds from the politics and the media world, जो हमें ये बताएंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पॉलिटिक्स को ना सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट ऑल्सो रीडिफाइन भी कर रहा है. तो चलिए इस दुनिया को थोड़ा और समझते हैं, जहाँ कभी कभी likes are more important than votes, and the best strategy is to go viral. Welcome all of you. Welcome to Odisha. Jai Jagannath. Jai Jagannath. So my first question to you is, Shehzad, social media has played a very key role in a lot of political campaigns in India, and I think you also manage a whole social media team when it comes to election campaigns, etc. I hope I'm not saying the wrong thing. Internet users have grown after 2020. The internet penetration has been very. So how has your party strategically utilized social media to mobilize voters
and engage with your audience and influence elections? सबसे पहले फिर से एक बार जय जगन्नाथ। आपण केमती अशांति। देखिए, ऐसा है कि पिछले 10-11 वर्षों में ये बात सच है कि जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया था और भारत और लंका को जोड़ने का काम किया था माँ सीता को वापस लाने के लिए, उसी तर्ज पर इस देश में एक डिजिटल सेतु का पूरा विस्तृत नेटवर्क बन चुका है जिससे कि इंडिया और भारत जुड़ा है। पहले इंटरनेट जो था, मोबाइल फ़ोन जो था, एक लग्जरी माना जाता था। इट वॉज आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन पर्सनस एक्सेस। मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में था और उस समय पर 1 GB डेटा लगभग 250-300 रुपए का डाउनलोड डेटा कॉस्ट होता था, और उस समय जो स्पीड होती थी वो मात्र कुछ kbps की स्पीड होती थी। BSNL का लैन का कनेक्शन हुआ करता था, घर पे किसी के घर पे होता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। और कट टू आज अगर आप देखें तो भारत अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोगों के हाथ में 90 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। आज हमारा दुगना वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ा है, हमारे इंटरनेट के स्पीड्स बढ़े हैं, और जो 300 रुपए का 1 GB डेटा आता था वो घट घट कर आज 10 रुपया प्रति GB हो चुका है। मोबाइल फोन जिसको हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे, वी वर द सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर, आज हम सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बने हैं, जिसकी वजह से सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है। तो एक्सेस टू मोबाइल फोन, एक्सेस टू इंटरनेट, स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से, और उसी समय पर सोशल मीडिया का एक बर्स्ट होने की वजह से आज कम्युनिकेशन का तरीका बहुत बदला है। शुभांकर इज अ प्रोडक्ट इन अ सेंस ऑफ सोशल मीडिया। क्या शुभांकर, पर शुभांकर के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुभांकर के कोई परिवार में बड़े पत्रकार माता पिता नहीं हैं, इनका बहुत साधारण परिवार है, और जो भी शुभांकर है वो अपने हाथों से बना है। पर क्या शुभांकर ये चीज कर सकता था आज से 15 साल पहले? हमारी जो मीडिया थी, खास करके एक लेगेसी मीडिया जो होती है आमूमन, वो बहुत ही एक फिल्टर के साथ, एक एडिटोरियल कंस्ट्रेंट्स के साथ और एक इकोसिस्टम के साथ ऑपरेट करती थी। पर बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस एंड घर घर तक, हाथ हाथ तक सोशल मीडिया पहुंचा, हर एक व्यक्ति जो आज मोबाइल फोन के साथ है वो खुद एक रिपोर्टर बन चुका है, वो खुद एक कम्युनिकेटर बन चुका है, एंड दैट इज वेयर द स्टोरी ऑफ पीपल लाइक शुभांकर ऑल्सो लाइज। और इसी के चलते आज जब ये डिजिटल नेटवर्क इतना विस्तृत फैला है, नेचुरली पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या होता है? कम्युनिकेट करना, अपने मैसेज को, अपने आइडियाज को, अपने विजन को, अपने काम को। तो जब पहले मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लोग रैलीज में ज्यादा जाते थे, लोग टेलीविजन न्यूज ज्यादा देखते थे। आज न्यूज का कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हुआ है, लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा न्यूज कंज्यूम करते हैं। लोगों के हाथ में फोन है पर समय नहीं है कि वो घर पे बैठ के टीवी देखे। So naturally you have to reach out to them through the means that is possible, which is social media, which includes YouTube, which includes Instagram, Facebook, Twitter and other platforms. BJP has been an early mover। 2014 से पहले भी हम सोशल मीडिया को, क्योंकि उसमें हमें हमेशा लगता था कि we don't make value judgment on the final person who's consuming the social media, वो भी हमारा वोटर है। पर व्यूअर से वोटर, आपने बोला ना लाइक्स तो बहुत लोगों को मिलते हैं, लाइक्स तो सबको मिलते हैं, लाइक्स फिल्म स्टार को भी मिलते हैं, पर लाइक्स मिलना और वोट्स में कन्वर्ट होना, ध्रुव राठी को भी बहुत लाइक्स मिलते हैं, पर ध्रुव राठी के तमाम प्रयासों के बाद भी दिल्ली और हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। तो केवल लाइक्स होने की बात नहीं है, केवल वो प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म के साथ आपको चाहिए मैसेज और मैसेंजर। हमारे पास तीनों का एक प्रकार से त्रिकोण है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेंजर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है, सोशल मीडिया। और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना इफेक्टिवली सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट कर पाई। मैसेज और मैसेंजर उतना ही जरूरी है जितना कि मैसेज का मीडियम। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो जब आप
कोशिश करते हैं एक मैसेज अपने ऑडियंस को पहुंचाने का। आपके ऑपोजिशन पार्टी वाले कुछ चीज़ों को मिस इन्फॉर्मेशन करके भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं कि आपके ऑडियंस को या आपके व्यूअर्स को कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, या फिर पहुंच भी गया है तो उसको कैसे करेक्ट करें? उसके लिए आप क्या लितिशा स्टेप्स जी, लेते मैं हैं? इसको बताता हूँ, ये मीडियम की गलती नहीं है। अब कुछ लोगों की फितरत ही अगर ऐसी हो कि वो झूठ बोलना चाहते हैं या झूठ के आधार पर उनकी राजनीति टिकी हुई है, तो मीडियम चाहे कुछ भी हो, पहले एक झूठ परोसा जाता था कि देखिए आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की, जो सच नहीं था। उस समय पे भी दिखाए, सबके पास प्रमाण थे। तो झूठ उस समय पर भी बोला जाता था, झूठ आज भी बोला जा रहा है। उस समय पर झूठ पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, विस्पर कैंपेन के माध्यम से बोला जाता था। आज झूठ बोला जाता है तो बेशर्मी से सोशल मीडिया पे बोला जाता है। अब ऐसे भी हम लोगों ने, इनके साथ भी हमने लड़ाई लड़ी है, जो कहते हैं मैंने स्कूल बहुत अच्छे बना दिए दिल्ली में, वो कहते हैं हमने सड़कें यूरोप वाली बना दी, वो कहते हैं हमने दिल्ली वासियों को क्लीन एयर और क्लीन वाटर दे दिया। पर मुझे लगता है कि जो टूल्स फेक न्यूज़ फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मैंने देखा था मुमताज़ जी ने भी कई बार सड़कों पर उतरकर पोल्यूशन के विषय पर, मेरी पार्टी से नहीं है, मेरी विरोधी पार्टी से है, पर दिल्ली में रहती हैं, ये भी खुद भी अफेक्टेड पार्टी है, मैं भी अफेक्टेड पार्टी था, तो हम लोगों ने उसी मीडियम का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड पे उतरकर ये बताते हैं कि बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर दी है, हमने हकीकत बनाया उसी मीडियम से। तो जिस मीडियम से फेक न्यूज़ फैलाया जा सकता है, उस मीडियम से उसी तीव्रता से फेक न्यूज़ को बस्ट करने का काम भी होता है। अल्टीमेटली द पर्सन हु इज रिसीविंग इट, ही लुक्स एट द क्रेडिबिलिटी किसकी है। क्रेडिबिलिटी जिसकी होती है उसकी बातों में विश्वास रखते हैं। वरना एक शुभांकर का पॉडकास्ट है जो देश के नैरेटिव को तय करता है, केजरीवाल वाला पॉडकास्ट आप देखिए, दैट वाज अ नैरेटिव शेपिंग पॉडकास्ट। और एक है ध्रुव राठी, जो वो भी अपना नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं, पर वो कोई देता नहीं है। क्योंकि मैंने अभी ऑपोजिशन की बात की और शहजाद ने भी, मुमताज़ जी, ऑपोजिशन नहीं है, मेरी मित्र हैं, हम सभी लोग देश को बनाने में योगदान देते हैं। बट पार्टी तो ऑपोजिशन की ही है, एंड आई थिंक ऑपोजिशन इज़ वेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। तो आपका क्या कहना रहेगा सोशल मीडिया यूसेज के लिए, जब मिस इन्फॉर्मेशन, क्या बीजेपी या आप भी आपके किसी इन्फॉर्मेशन जो आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एंड वो कोशिश करते हैं कि ये ना हो, तो आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं उसको काउंटर करने का, या फिर आपका मानना क्या है इस मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग के आइडियोलॉजी पे? क्योंकि स्मीयर कैंपेन बोलते हैं इसको, तो स्मीयर कैंपेन को लेके आपका क्या विचार है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली झूठ को सब यकीन करते हैं, सच को साबित करना पड़ता है, चाहे कोर्ट में हो कि अब यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया के बहुत पॉजिटिव्स भी हैं। इन्होंने कहा सोशल मीडिया प्रोडक्ट है, मैं अपने आप को भी सोशल मीडिया प्रोडक्ट मानती हूँ। आज अभी भी गूगल करेंगे तो बोलेंगे इंटरनेट पर्सनालिटी, और कुछ नहीं दिखाएगा मेरे बारे में। मेरे फादर कहते थे कि मीडिया और जर्नलिस्ट को पता भी नहीं कि मेरी बेटी है, बिल्कुल 4 वर्ष तक पता भी नहीं था कि उनकी एक बेटी भी है, पर अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों को पता चला कि एक उनकी बेटी भी है। और आज जो भी मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से करती हूँ। तो बिल्कुल 954 मिलियन पीपल हैव इंटरनेट, जिसमें से 350 400 नियरली मिलियन लोग रूरल एरिया में रहते हैं। तो जो भी हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के हाथ में है। हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, सब्सक्राइबर्स लिमिटेड होते हैं, पर दिन भर रात भर एक एडिक्शन है। आपने फ़ोन उठाया और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होती है, सच हो या झूठ। The amount of information from little children to old people that they are consuming and processing, that is why it becomes very important. And I was reading कि अभी हम थोड़ी देर पहले जस्टिस चंद्रचूड़ जी को सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ और की प्रॉब्लम दुनिया भर में है, लेकिन the number 1 country and the biggest threat that India has today is disinformation and fake news. More than life-killing diseases, more than illicit economic activities, more than inequality, the biggest threat that India is facing today is disinformation and fake news. So you can imagine कि इससे कितना कुछ असर पड़ सकता है, कितना कुछ बदल सकता है। अब
सॉरी शहजाद, यू आर माई फ्रेंड, बट अगर होम मिनिस्टर मंच पर से ये बोलेंगे कि हम लोग खट्टी मीठी सच्ची झूठी कोई भी खबर मिनटों में वायरल कर सकते हैं और इसका चुनावी फायदा हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक खुद उन्होंने उदाहरण बताया था कि किसी एक आईटी सेल पर्सन ने बोल दिया कि अखिलेश जी ने अपने फादर मुलायम सिंह जी यादव को थप्पड़ मारा और वो मिनटों में वायरल हो गया और उससे चुनाव प्रभावित हुआ कि जब ये बाप का ना हो सका तो हमारा क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं हाउ नैरेटिव्स कैन चेंज। बहुत ही रिस्पॉन्सिबली पोस्ट करना चाहिए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जैसे लोग झांसे में आ जाते हैं, हम लोगों को डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता है कि सच क्या है झूठ क्या है। तो एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, गांव का हो, किस तरीके से और क्या प्रोसेस कर रहे होंगे उनको। देयर इज नो डिजिटल लिटरेसी। मोबाइल फोन सबके पास आ गए, इंटरनेट सबके पास आ गए, बट डिजिटल लिटरेसी डज नॉट एग्जिस्ट। एंड व्हाई आई से रिस्पॉन्सिबली इज बिकॉज online rumors, 27 plus lynchings have happened only because of online rumors. Online rumors have offline consequences, offline violence. So this is the danger of social media. I'm talking negatively. I don't want to go into the BJP IT cell ecosystem. And इन्होंने जैसे rightly कहा कि they got into the bandwagon very early. You know, IT revolution राजीव गांधी जी लेकर आए थे, but फायदा पूरा भाजपा ने उठा लिया, हम लोग लेट हो गए, पर हम भी सीख रहे हैं अब। But you know, you're right. As opposition, we try. There are hashtags. मैं tweet करने की कोशिश करती हूँ, कितनी बार वो draft में जाता है, and I keep wondering कि मेरा tweet जा क्यों नहीं रहा है। But there are certain hashtags accept ही नहीं करते हैं. You have to keep removing certain words. You have to keep removing, and then आपका वो ट्वीट पोस्ट हो पाएगा। तो क्या है मुझे नहीं पता पीछे से कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, बट दिस इज द रॉन्ग नैरेटिव दैट इज बीइंग सेंट। एंड लाइक आई सेड कि सच को आपको साबित करना पड़ता है, झूठ सब मान जाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट एंड इट इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज डेंजर टू डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को खतरा है इससे। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी आईटी रेवोल्यूशन लाए, फायदा हमें कर रहा है। राजीव जी वैसे राहुल गांधी को भी धरती पर लेकर आए, फायदा हमें ही कर रहा है। बट ऑन ए लाइटर नोट, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि फेक न्यूज इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द मीडियम। आप बात को समझो। देश की सबसे बड़ी फेक न्यूज क्या थी कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी जी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट तक ने क्लीन चिट दे दिया, फिर भी वो इकोसिस्टम आज भी प्रयासरत है कि गुजरात को बदनाम करे। तो ये फेक न्यूज का जो फेक न्यूज फैलाने वाला प्रॉब्लम है, मीडियम नहीं। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पेडलर, नॉट द मीडियम। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कहूंगी, एक बड़ा वायरल वीडियो देखा था पहली बार इतनी चुप होकर सुन रहा है। आपने वायरल वीडियो देखा होगा, राहुल गांधी जी का आलू में से सोना निकलेगा। कट पेस्ट जो आप लोगों की आईटी सेल ने किया, आज तक गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को लगता है कि राहुल जी ने ये बात बोली। वो सिर्फ रिपीट कर रहे थे मोदी जी ने क्या कहा किसी एक भाषण में, क्योंकि मोदी जी अपना समझा रहे थे, सुना रहे थे, और वो आज तक इट इज एट्रीब्यूटेड। सो थैंक यू फॉर योर आईटी सेल। मैं वही तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी पे ये भी बात चिपकती है कि वो कह सकते हैं कि आलू से सोना निकला। तो राहुल गांधी हैज टू वर्क ऑन हिज क्रेडिबिलिटी। यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, अभी आई थिंक हम डिबेट में नहीं है गाइस। शहजाद, यू प्रॉमिस यू विल नॉट डिबेट। चलिए सर, आपकी डिजिटल लिटरेसी वाले बात से ये क्वेश्चन आपके लिए भी है और आपके लिए भी। मैंने एक डेटा पॉइंट जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, ये एक डेटा पॉइंट है कि all internet users under the age of 35, 90% of them were influenced and their voting was influenced. तो आपको लगता है जब आप दोनों ही अपने अपने जगह पर ये बोल रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको ये करना है या वो करना है, क्या आपको लगता है इसका सोल्यूशन टेक्नोलॉजी से हो सकता है? एंड क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज के बेस्ट इंटरेस्ट में है टू मेक इट अ लॉ इन द डिजिटल स्फीयर कि इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, इसको लॉ के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए? जैसे आज के डेट में जब इफ देयर इज अबेटमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट आज के डेट में
रूमर फैलाने का कोई क्रिमिनल ऑफेंस का सिस्टम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए और आपके लिए, सबके लिए है कि इसको सॉल्व करने के लिए या तो टेक्नोलॉजी के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका टू कंट्रोल दिस, बिकॉज ये तो इट कैन नॉट बी ऑन गोइंग, एंड क्या ये पार्टीज के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा? शुभांकर जी की भी तो शुभ ओपनिंग करा दो आप। शुभांकर जी आप शुरू कीजिए, फिर उसके बाद। देखो, इस सवाल का जवाब पॉलिटिशियन दें शायद बेहतर है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया का मैं जवाब देना चाहूंगा कि आपने मुझे टीवी एंकर के तौर पर नहीं बुलाया। मैं हिंदी बोलने वाला व्यक्ति एक नॉन हिंदी स्टेट में बैठा हूं। दैट इज पावर ऑफ सोशल मीडिया। मैंने देश के नंबर 1 चैनल के लिए काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया, लेकिन उस आइडेंटिटी को दिमाग में रखकर आपने मुझे नहीं बुलाया। दैट इज पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो आई फील कि डेमोक्रेसी को उसकी असली ताकत का एहसास सोशल मीडिया ने कराया। अब से पहले 10 मठाधीश थे, उनके हाथ में 10 चैनल थे, वो 10 बड़े एंकर थे जब हम इतने भी थे, और जब मैंने टीवी ज्वाइन किया तब भी वो वहीं पर थे, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल भी वहीं रहने वाले वो। बट सोशल मीडिया ने आपको एहसास कराया कि अगर आप में टैलेंट है, आप में बात है, आप कर सकते हो। और इस देश में आज के टाइम में हजारों ऐसे लोग हैं। एक जमाना था जब टीवी पर कुछ भी चलता था हम विश्वास करते थे, हम मानते थे शक्तिमान उड़ सकता है। आज टीवी का भी फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर हो जाता है। बहुत सारी खबरें टीवी जल्दबाजी में करता है, उसका फैक्ट चेक हम सोशल मीडिया पर कर देते हैं। टीवी को रेवेन्यू के लिए डिपेंड होना पड़ता है। सोशल मीडिया पर अगर आप चाहो, अगर आप अपने आप में ईमानदार हो, आप क्रेडिबिलिटी से काम कर सकते हो। एक ऐसा दौर जब लोग कहते हैं कि बिना लाइन लेंथ लिए आप नहीं काम कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, उसमें हम जैसे लोग एग्जाम्पल हैं। हम बार बार कहते हैं, हमने दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी के भी 5 सांसदों को बैठाया था, उतने ही टफ सवाल पूछे थे जितने हमने अरविंद केजरीवाल से पूछे थे। उससे पहले अखिलेश जी को भी हमने बैठाया था, नितिन गडकरी जी भी हमारे पास आए थे। तो सोशल मीडिया ने आपको वो आजादी दी है कि आप जो 4th पिलर की भूमिका है उसे निभा सकते हो। वो जो सुपर 30 फिल्म में डायलॉग था कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब जिसमें काबिलियत होगी वो राजा बनेगा। तो दैट इज पावर ऑफ सोशल मीडिया, और ये बहुत शानदार है। अब हर चीज के फायदे, हर चीज के नुकसान है। सोशल मीडिया को अलग अलग तरीके से मैम ने बताया, जैसे अखिलेश यादव वाली बात थी। अखिलेश के पिताजी ने मैम बाय द वे कहा था वो बात, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि जो अपने पिता का ना हुआ वो प्रदेश का क्या होगा, और ये काफी थप्पड़ वाली बात गलत थी, ये बात सच थी। तो सोशल मीडिया ने आपको ताकत दी है। अब उस ताकत को आप कैसे एहसास करते हो, कैसे उसका इस्तेमाल करते हो, ये आपके लिए चैलेंज भी है। हाल फिलहाल में कई घटनाएं हुई, लॉ बने ना बने वो शहजाद और मुमताज बनाएंगे, लेकिन एक अच्छी चीज जो हुई है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को यह अवसर दे दिया है कि अब आप डिपेंडेंट नहीं है, अब आप मजबूर नहीं है। जब मैं चैनल छोड़ रहा था, मेरे पिता ने मुझ पर क्वेश्चन किया था, और वो मुझसे बार बार कहते थे कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है। आज मैं और शहजाद सुबह से आ रहे थे, हमें हजारों लोग ऐसे मिले सुबह से जो हमसे कह रहे थे कि हमने कंगना का ये देखा, हमने वो देखा, और वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एहसास था। आपकी टीम में बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने हमसे कहा कि हमें लगता है हम भी कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, और ये इम्पैक्ट उसका है। इंडियन पॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट है। आप अमेरिका से लेकर दिल्ली तक देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप सारे पॉडकास्ट पे गए। इस साल देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपना पहला इंटरव्यू पॉडकास्ट में दिया। सो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म की एक नई परिभाषा अब सोशल मीडिया के जरिए लिखी जाएगी। अब इसकी लकीर क्या होगी, कैसे इसको आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो शायद जवाब ये दोनों बेहतर दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन इसी लाइन में था अबाउट सिटीजन जर्नलिज्म। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होते हो तो आपके पास बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि अनबायस्ड रहना है एंड आपको रिपोर्ट करना है, अनपोलराइज्ड रहना है। बट जैसे ही आप सिटीजन जर्नलिज्म में आते हो, एंड यू आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म बिकॉज यू रन योर ओन, यू डोंट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आप प्रोडक्ट ऑफ टीवी पहचान सोशल मीडिया ने दी है। आई मीन यस, ओके, आई विल करेक्ट माई मैंने 7 साल टीवी को दी है। सो अब सिटीजन जर्नलिज्म में रेगुलेशन नहीं है, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो गई, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी कम हो गई। तो ये पॉजिटिव भी है कि हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म, हर कोई जर्नलिज्म कर सकता है आज, बट ये एक नेगेटिव भी है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। अगेन लाइक ए सेड कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है?
डेमोक्रेसी में आप हर व्यक्ति को वो हक देते हो कि उसकी राय क्या, उसकी सोच क्या है। अगर वो अपराध की श्रेणी में जाता है तो कानून है। सोशल मीडिया पर ही भड़काने वालों को जेल हो रही है। अभी भी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया, जिसपे कानून अपना काम कर रहा है, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसकी लाइन लेंथ तय होगी। लेकिन डेमोक्रेसी ने आपको अधिकार दिया है। अब ये नहीं है, जैसे आपने नैरेटिव की बात की, एक जमाने में टीवी पे नैरेटिव सेट होता था। अब आप कुछ भी करते हो 10 मिनट में आपको पता होता है क्या ये सच है, क्या ये गलत है। सोशल मीडिया का असर ये कि शहजाद ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। सोशल मीडिया का असर ये कि हमारे पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट शहजाद ने कर दिया। तो वो जो नैरेटिव वाली बात आप कर रहे हो, जितने लोगों को आखिर वोट देने वही लोग जा रहे हैं, तो जो वोट देने जा रहे हैं अगर आप उनके ओपिनियंस देख रहे हो तो उसमें आई डोंट थिंक कोई बुराई है। जितने ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं, उनके दिल की राय है, 5 मिनट में फैक्ट चेक हो जा रहे हैं। आपने लाख तारीफें की। I think Mumtaz ji wants to say something. मैम फिर आप देख किसको रहे हो वो भी मैटर कर रहा है। जैसे आप सब्सक्राइब किसको कर रहे हो वो भी बहुत फर्क पड़ता है, मुझे ये लगता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपने पूछा, अगर स्ट्रिक्ट लॉज आते हैं फेक न्यूज़ के खिलाफ, बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन, क्योंकि पीपल आर सो इम्पेशेंट। एंड जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल है आपको आइडेंटिफाई करना क्या सच है क्या झूठ है। हम लोग एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इवन बीइंग इन अ प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत सोच समझ के आप एक भी लाइन या शब्द लिखें या आप कुछ शेयर करें या रीपोस्ट करें, हमें सोचना पड़ता है। बट कभी कभी हम भी झांसे में आ जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आम आदमी जो है, जिसे नहीं पता है, उसको डे इन एंड डे आउट आप गलत नैरेटिव फीड कर रहे हैं, वो कैसे जानेगा पहचानेगा। अगर आज मैं कहूँगी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बट मेरे घर में काम करने वाली 60 ईयर ओल्ड लेडी हैं, वो फंस गई कोई जॉब स्कैम में, और इतना डर गई कि उसको डरा दिया कि पैसा नहीं देंगे आप तो पुलिस आ जाएगी। नाउ दीज आर इलिटरेट पीपल जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जो इंस्टाग्राम भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे कंटिन्यूस फॉरवर्ड्स चल रहे हैं। नोबडी कैन डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। एंड जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऑनलाइन रूमर्स हैव ऑफलाइन कॉन्सिक्वेंसेज, द डैमेज इज ऑलरेडी डन। फैक्ट चेक जब तक होता है तब तक तो वायरल हो चुका होता है इन्फॉर्मेशन, एंड वो इन्फॉर्मेशन फैक्ट चेक उन लोगों तक वायरल नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन वायरल हो जाता है। सो दैट इज द स्कैरी पार्ट। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जो शुभांकर जिस तरफ इशारा कर रहे थे। आज हम एक ब्रॉडर, मोर डेमोक्रेटाइज्ड इंफॉर्मेशन एज और स्पेस में रह रहे हैं। पहले द गेट कीपर्स ऑफ न्यूज एंड इंफॉर्मेशन वर वेरी लिमिटेड, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल सच ही परोसा। ये ब्लैंकेट आप उनको जो चेक दे रहे हैं ना कि देवर ओनली द एंजल्स जो डिसेंड करके केवल करेक्ट न्यूज बता रहे थे, वर्षों तक यहां पर ये फैलाया गया एक नैरेटिव कि भाई, जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि एक बहुत मतलब स्पोकन अबाउट घटना है। गुजरात के दंगों में एक खबर चली कि एक मंदिर तोड़ा गया है, और वो मंदिर था ही नहीं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चली। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने 26/11 का जब हमला हो रहा था तब लाइव प्रसारण किया, एनएसजी कहां उतर रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग थी। सोशल मीडिया पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन स्ट्रीम मीडिया और लेगेसी मीडिया में भी रही है। लेगेसी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपने आप के लिए एक सेल्फ रेगुलेशन के मानक तय किए हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अब जैसे ये स्पेस और इवॉल्व होती है, जो इस पूरे पॉडकास्टिंग, यूट्यूब, इस स्पेस में लीडर्स हैं, जैसे शुभांकर एक लीडर है इसमें, ऐसे लोगों को भी पहल करनी चाहिए सेल्फ रेगुलेशन की। पर एक चीज जो सरकार ने अच्छी की है और जो मैं उसको सही मानता हूं, और मुझे लगता है कांग्रेस ने भी जब वो पहले सरकार में थी उसने उसकी कोशिश की थी, वो थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल बनाना। किस लिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कांट से कि भाई देखिए ऐसा है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हम डिसाइड नहीं करते, कोई किसी चीज को पोस्ट करता है, कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वी आर जस्ट द प्लेटफॉर्म, वी विल नॉट डू एनीथिंग। अगर आप फिर प्लेटफॉर्म है तो देन बी न्यूट्रल। फिर शुभांकर का पोस्ट हो या ध्रुव राठी का पोस्ट हो, दोनों को चलने दो, दोनों को शैडो बैन मत करो, दोनों को आगे बढ़ाओ। या अगर आप एक स्टैंड लोगे कि नहीं, शुभांकर वाला मुझे जो है ना थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ है, सोसाइटी में इससे बहुत जहर फैल जाएगा, शुभांकर को बैन कर दो,
नहीं, ध्रुव राठी वाला, आई एम जस्ट गिविंग फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, डोंट स्टिक बाय दिस एग्जांपल। ध्रुव राठी वाला को एल्गोरिदम को बढ़ा दो, फिर आप जो है प्लेटफॉर्म नहीं है, आप बन गए सुपर एडिटर। सुपर एडिटर बनना है पांडा जी की तरह, तो पांडा जी इज आंसरेबल टू लॉ, पांडा जी इज सब्जेक्टेड टू लॉ, so Panda ji will be subjected to law, OTV will be subjected to law, you want to be super editor but I will be above law, ये देश में नहीं चलेगा। भारत में काम करना है तो भारत के संविधान और भारत के कानून के तहत आपको काम करना पड़ेगा। आप अमेरिका में अमेरिका के कानून को अकाउंटेबल हो, आप यूरोप में यूरोप के कानून को अकाउंटेबल हो, तो भारत में भी आपको भारत के कानून को अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट, ये होना चाहिए प्लेटफॉर्म फिर अकाउंटेबल। शहजाद एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आई थिंक हम इसकी नकारात्मक चीजों को ज्यादा चर्चा दे रहे हैं, इसके पॉजिटिव साइड पे कम दे रहे हैं। फेक न्यूज़ की जहाँ तक बात है मैम, कहा जाता है कि अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। अटल जी पूरी जिंदगी कहते रहे कि मैंने नहीं कहा था अपने इंटरव्यूज में, और अभी भी टीवी जब शोज बनाते हैं तो वो कहते हैं कि अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। सो वो पार्ट चलता आएगा। आप टीवी भी अगर देखते हो, रिया चक्रवर्ती या सुशांत के केस में जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज सब बदल गए हैं, कोई कहानी नहीं है, किसी ने ना अपॉलॉजी की है, टीवी दिखाता चला आता है। सेम सोशल मीडिया के साथ भी है। तो नेगेटिव पार्ट जो है उसकी चर्चा हो सकती है, पॉजिटिव पार्ट आई थिंक हमें देखना चाहिए। पॉजिटिव पार्ट ये है कि आज 4 लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि देश का नैरेटिव क्या होगा। आपको अपने प्राइम टाइम पे नहीं दिखाना, आप मत दिखाइए, देश देख लेगा। आपकी ओडिशा में घटना हुई है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सोशल मीडिया का इंपैक्ट क्या होता है। मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन बीती रात से मेरे पास कम से कम 5000 मेल आ चुके हैं कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात करते। ये सोशल मीडिया की पावर है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वो आपको मजबूर कर रही कि नहीं, इस विषय पर आपको बात करनी पड़ेगी। दिल्ली में घटना हुई, शायद 10 साल पहले घटना होती, आप उसको इजीली छिपा के निकल सकते थे। हो सकता है टीवी की भाषा उतनी तंज ना रही हो, लेकिन जिन्हें बोलना था उन्होंने खुलकर बोला। हम जैसे लोगों ने दिल्ली वाली घटना को लेकर आवाज उठाई, हमने दिखाया कि आपके पास 50 करोड़ यात्रियों के डुबकी लगाने के रिकॉर्ड है, लेकिन ये नहीं आपको पता कि ये घटना कैसे हुई। तो ये सोशल मीडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स है जो सरकारों के दबाव में नहीं है। हर आदमी को अधिकार मिल गया। आप मत दिखाइए प्राइम टाइम पे, हम आपको दिखाएंगे, और जो दिखा रहे हैं उनको जनता का सपोर्ट मिलेगा। और जब जनता सपोर्ट करती है तब बड़े बड़े नेता, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो नेता जो आज टीवी को 10 मिनट वक्त दे रहे हैं, वो हम जैसे प्लेटफॉर्म के पास 2-2 घंटे बैठने को तैयार है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो जनता हमारे साथ खड़ी हुई, और हम इसलिए ये स्टैंड ले पाए क्योंकि वो जनता हमें देख रही है, वो हमें ताकत दे रही है। सो आई थिंक जो डेमोक्रेसी की रियल मीनिंग है उसे सोशल मीडिया ने बहुत मजबूती से एम्पावर किया है, और चंद मठाधीशों के वो जो एक गुरूर था उसको तोड़ दिया है। नहीं, बेशक आप सही बोल रहे हैं। और मैंने जैसे बोला कि मैं खुद अपने आप को सोशल मीडिया प्रोडक्ट समझती हूँ। मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था कोविड के वक्त, एंड जो उन कुछ महीनों में जो मुझे एक नेटवर्क मिला लोगों का, किस वजह से मिला, क्योंकि एक ट्वीट करते थे कि हमें अस्पताल के बेड की ज़रूरत है चेन्नई में, या हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है दिल्ली में, या किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसे लोग जुड़ते थे और हम लोगों ने सैकड़ों लोगों की उस माध्यम से मदद करी, और वही सोशल मीडिया से ही मेरी एक शुरुआत थी। आज अगर टीवी मुझे स्पेस नहीं देगा, पर अभी भी मैं यहाँ पे लोगों को मिली जिन्होंने बोला हम आपका काम देख रहे हैं। तो दैट इज़ थ्रू द पावर ऑफ सोशल मीडिया द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ स्मॉलर प्लेस। हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। आज अगर मुझे भी कुछ कहना है, आप मुझे पॉडकास्ट पे तो बुलाएंगे नहीं, तो मैं तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं तो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ही बोलूंगी, और वहां से जैसे राहुल गांधी पहला पॉडकास्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर आपका है। वो तो अब इनको कन्विंस करना पड़ेगा। ये जो हमारा कॉन्वर्जेशन हो रहा है, इससे मुझे श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक बात याद आती है, गुड जर्नलिज्म इज बैड बिजनेस। एंड आई थिंक दिल्ली इलेक्शंस में हमने करोड़ों का नुकसान सहा है। And I think social media has changed that. Absolutely. But फिर भी कहीं ना कहीं ये जो टेक कंपनीज हैं, और जैसे आपने भी ये बात मेंशन करी कि एल्गोरिदम कभी इनको शैडो बैन कर देता है, एल्गोरिदम कभी इनको बढ़ा देता है। एक डेटा पॉइंट है जो मैं नहीं जानती कि आपको पता है या नहीं पता है। कनाडा में व्हेन द न्यूज़ पब्लिशर्स ट्राइड टू say that you should give us equal amount of royalty for publishing content on your platform. This is for Meta. उन्होंने न्यूज़ को ब्लैकआउट कर दिया, एंड उनका रेवेन्यू बढ़ गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मेटा जहाँ पे आज हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इन पे डिपेंड करते हैं,
अगर ये कल के दिन हमारे कंट्री में आके बोले कि हम ब्लैकआउट कर देंगे पॉलिटिशियंस को या गवर्नमेंट के किसी कंटेंट को, या फिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है आगे जाके? तो मेटा ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे आप पॉलिटिकल वीडियोस डालेंगे, आपके वीडियोस की रीच उन्होंने खत्म कर रखी है। सिर्फ एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स वहां सर्वाइव करता है। तो मेटा की ये पॉलिसी जो आप कह रहे हो ऑलरेडी उनका है। बट अगेन देयर आर प्लेटफॉर्म लाइक एक्स, आप जाइए लिखिए, वो आपको आजादी बट दे फिर रहे भी हैं। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे तो डिपेंडेंसी रह ही रही है ना। देखिए सोशल मीडिया की खूबसूरती भी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग चीज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर उस इंटरेस्ट के लोग ज्यादा। जैसे अगर आज न्यूज इंडस्ट्री की बात करो, आप लोग टीवी का हिस्सा हो, आज टीवी 60% ट्विटर पर डिपेंडेंट है, जिसे मैक्स कहते हैं। एक दौर था जब आप खबर पूछते थे, आज आप केवल ट्विटर फॉलो करते हो कि वहां पर छपा उसको उठा के ब्रेकिंग न्यूज बन गई। एंड दैट्स हाउ टीवी रन। आज के टाइम में टीवी 70% ANI प्लस X है। तो ये अगेन सोशल मीडिया उसमें आ गई कहानी। I also think that as much as बार बार हम लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया, मैसेज एंड मैसेंजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रम्प को ट्विटर ने बैन किया था, didn't stop Donald Trump from becoming president of America. So my point is कि if the message and the messenger is strong, even if these companies, and these are only companies, they are out there to make profit, वो कोई altruistic motive से देश को, समाज को सुधारने के लिए नहीं आई है। Therefore, our governments across the world have to be conscious that they need to follow the rules and laws meant for any other company. We need to keep an equal playing field for media of all kinds. They have to follow the constitution. But I think one scope where, क्योंकि हमारा जो topic था, जो मुझे भेजा गया था, was the role of social media and technology in politics, right? While we have discussed a lot about social media, the one thing which I think even Mumtaz will agree upon is the use of technology in the public delivery of goods and services, which has taken place in the last 10 years. And that is an undeniable experience. Whether it is the CoWIN app, through which 200 crore vaccines were delivered to people at the same time when the world was getting vaccinated, whether it is the Trinity, जो त्रिशंकु बना है, JAM, Jandhan, Aadhaar, Mobile. Today, because we've opened bank accounts, we've linked them with Aadhaar, and people have mobile phones with good internet connectivity. Today, we don't send 1 rupee and expect 70, 80, 90 paisa to be siphoned off. That 1 rupee reaches the beneficiary. And at last check, approximately 35 lakh crore rupees was sent to the poorest of the poor, and not a single rupee was siphoned off. In fact, this JAM Trinity has helped the country save 3.5 lakh crore rupees, which would have otherwise been wasted had technology not been used. Today, we have efficient delivery of services. And I think that also needs to be looked at, the use of technology in ensuring that public services can be delivered efficiently, with integrity, without corruption. I think that is also an achievement of technology, and that's a positive use of technology in public space. So that is technology in governance. That's right. We're talking about technology in politics. So the negative side of it, voter Politics, list governance के लिए तो manipulation, voter list manipulation. So it अब is, देखिए ऐसा है। the point I'm trying to also drive home here is, we are dependent on technology companies that are non-Indian, right? These technology companies they belong or they're governed by another country. And I know the Competition Commission of India is also trying to, streamline the laws, etc. But when do you think India is going to be that country which develops products in technological space which will rule the world, just like how today American companies are in a way controlling our social media narrative? When will that happen, that India will become truly Vikasit in terms of having our own technology and not depend on another country for social media or distribution or dissemination of information? Modi Sarkar has plans till 2050, Shehzad will answer. Thank you for acknowledging that Modi is going to be in power for that long period of time. I accept it with all humility. We are going to be in service of people. See, look, I think even now many of these companies have the brightest minds from India working for them. Whether it is Google, whether it is a YouTube, whether it is various levels of leadership at Instagram.
they have Indians working there. Again, I'm not fixated in a world which is now becoming increasingly smaller as to who built the platform or who built the technology. That is not of the consequence. Because somebody may create in some corner of the world a technology or a platform which may be striking a chord at certain point of time. It may go out of circulation after 5 years, 10 years. A new platform will replace it. The point that I'm trying to make is that irrespective of where the platform originates, whether it originates within India or whether it originates outside of India, the rules of operating, the rules of engagement of any platform should be such that the platform should not be allowed to run roughshod over Indian laws. As long as because we cannot control creativity or the pace of creativity. Tomorrow, if the ecosystem is strong enough, platforms will be created left, right, and center in India also. But the fact of the matter is that what we need to focus on is that the platforms, wherever they operate from, need to understand that India's laws, which are governed by a sovereign parliament, cannot be run or cannot be overridden by their whims and fancies, that they'll follow laws in America but won't follow laws in India. So I think that is the basic principle. I'm not fixated upon who creates the platform at all, actually. So one of the points that Shehzad you said, and my question will be directed to you, Shubhankar, is that Shehzad said that Twitter had banned Donald Trump, but that didn't stop Donald Trump from becoming the president. I would like to differ here. Best friend ने खरीद लिया था ना? I was about to say that to become the president and to lift, they had to make an expensive deal where Elon Musk had to buy X in order to release the ban on Donald Trump, and he could promote himself on X and then became the president. Look, Elon Musk bought Twitter or bought this X platform and promoted Trump, not because he wanted to make Trump president, but because he foresaw that Trump had the popular support of the people. But that doesn't deny the fact that he still needed X as a platform to I don't rally agree for with him. That popular support was See, this is again manipulated and created on social media. Actually, हम लोग क्या है ना, हम लोग इस मानसिकता से बाहर ही नहीं आ सकते कि there is a genuine thirst for an ideology that Donald Trump subscribes to. So we try to convince ourselves, no, it is the X platform. So since no, both of you have a political leaning here, and since Shubhankar does not, I want to hear from him. What do you think about this series of the timeline that I just mentioned? मुझे लगता है किसी प्लेटफॉर्म खरीदने से कोई जीत नहीं सकता है, ये सच है. बट एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का असर ये हुआ है कि यूथ का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है. अगर आपने मीम कल्चर देखा हो, जैसे शहजाद और मैं साथ में आ रहे थे, तो आप बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प could still become president if he was still banned on मैं आगे X. इसी पे मैं आ रहा हूँ. जैसे मैं और शहजाद सुबह आ रहे थे, तो शहजाद के साथ जो लोग फोटो खिंचवा रहे थे वो अक्सर 60 साल के ऊपर थे. सुबह सुबह शहजाद ने मुझसे कहा कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो 60 साल के ऊपर है. वो अपने टीवी वाला क्राइटेरिया देख रहे थे. तो एक परसेप्शन भी रहा है कि यूथ का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट थोड़ा कम रहा है, या कॉलेजेस में, मतलब कुछ लोगों का रहा होगा, बट जो मास, जैसे मैं बीटेक मैंने किया है, वहां पर इतनी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी. बट अब सोशल मीडिया, मीम कल्चर, हैशटैग, इनका असर ये रहा है कि आज के टाइम में इंस्टाग्राम भी पूरा पॉलिटिकल उससे भरा पड़ा है. उससे लोगों की रुचि, युवाओं की रुचि पॉलिटिक्स में हुई है. जब वो इन्वॉल्व हुए हैं तो उसने पढ़ना लिखना शुरू किया है, एंड आई थिंक वो एक बहुत मेजर चेंज रहा है. तो जो आप डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प को जब बैन किया गया हो, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प खुद नहीं थे, बट डोनाल्ड ट्रम्प की चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार थी. नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन लितिशा से है. लितिशा, इनके पास एक्स था, ठीक है, एक्स खरीद लिया इनके मित्र ने. बाकी डेमोक्रेट्स के पास क्या नहीं था? फेसबुक किसके पास था? मेटा किसके पास था? गूगल किसके पास था? तो वो क्यों नहीं जीत पाए? उनके पास तो और भी बड़े प्लेटफॉर्म है. एक्स का तो हार्डली, एक्स हैज नो कंपैरिजन विद इंस्टाग्राम और विद अदर प्लेटफॉर्म. सो आप बताइए. इट्स नॉट जस्ट द प्लेटफॉर्म, इट इज द मीडिया, इट्स द मैसेंजर एंड द मैसेज. शहजाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया अभी. अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने ज्वाइन नहीं किया है. मैं कह रहा हूं सरकार, मोदी जी के परम मित्र. मैं ये, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सोशल मीडिया becomes the X factor when you have the medium, when you have the messenger and the message. If you don't have a message, you have the following. What will you communicate to your followers? If you don't have the messenger
And I'm not saying this to Mumtaz. No, he's right. He's right. The connection with the youth and engage them in politics, that is what apparently it was his son, Baron, who introduced him to podcasts. And he gave all his interviews and bites only on podcasts. That is what helped him connect with the youth. And Kamala Harris is younger than Donald Trump. Younger की बात नहीं है. But Donald Trump connected with the youth. That's the problem. Modi is younger than Rahul Gandhi. पर सुनिए, Rahul Gandhi never connects with the youth. चला मोदी जी और ट्रम्प की परसों कोई मीम आई थी, वो तो बैन कर दी आप लोगों ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से. बैन होती तो इन्होंने कैसे देखी? बैन होती तो इन्होंने कैसे देखी? क्योंकि खबर आई बैन हो गई तो फेक मोदी जी हथकड़ी पहन के बैठे थे बाजू में और वो बैन हो गई. हर जगह से हटा दी गई है. देखो खबर पहुंच जाती है, उसके बाद फिर आप ढूंढते रहे सच क्या है झूठ क्या है. So before we open to the audience, on a lighter note, I have one quick question for all of you, and this has to be whatever comes on first in your mind. शुभांकर से शुरू करें. So what is वेरी the टफ. most सवाल पूछने की आदत हो ना, जवाब देना बड़ा टफ आता है. तुम पॉडकास्टर्स को ठीक करना है. आप लोग कर लीजिए कॉन्वर्सेशन. हमारे ही पॉडकास्ट शेयर कर करके दिल्ली जीते हो. अब अच्छी बात है, मैं तो मानता हूँ. इन लोगों ने नैरेटिव तो नहीं सेट करवाया आपसे. The commentary is on प्रॉब्लम ये है legacy कि media. हमने जो इनसे टफ क्वेश्चन पूछे थे वो बाकी लोगों ने शेयर नहीं किए. इनके पॉडकास्ट में बहुत सारे मीम्स थे बट ऑपोजिशन ने उठाया ही नहीं. अच्छा लितिशा का रोल बेचारी का. So मेरा एक ही क्वेश्चन है before we move to the audience. What is that one meme? It could be political, non-political, it could be a trend, whatever, that has stood out for you and you have absolutely just lost your mind over it. मीम वाह. मतलब पॉलिटिकल मीम की बात कर. During the elections or without also, what is that one meme that has really, you've been मुझे like, तो अभी दिल्ली इलेक्शंस में वो अंबेडकर जी के साथ जो मीम बनने शुरू हुए, एआई वीडियोस बनने शुरू हुए थे. थोड़ा विस्तृत से बताइए कभी. पहले थोड़ा विस्तृत से बताएं. वो शहजाद कर देंगे आपको, वो शहजाद समझा देंगे. आपके मुख से अच्छा लगेगा. बताइए. तो दो तरह की मीम वायरल हुए थे. एक मीम होते जिसमें अंबेडकर जी आशीर्वाद दे रहे थे और एक मीम था जिसमें बीजेपी वालों ने उनकी पिटाई करवाई थी. फेक न्यूज़ मत बोलो, हमने कुछ नहीं किया. अरे आपके हैंडल से गए हैं. हमारे कुछ बीजेपी हैंडल से, बीजेपी दिल्ली. हमने कुछ नहीं, हमने वायलेंस. आप जबरदस्त वॉर. तो वो आपका फेवरेट रहा है? हाँ, मुझे लगा Favorite या कि just वो stand काफी stood क्रिएटिव out? था क्योंकि अंबेडकर जी को लेकर आज के टाइम में अंबेडकर जी जरूरी है बट उसको कितने इंटरेक्टिव वे से आप यूज कर सकते थे. जैसे पहला मीम आया कि केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार तुम ही जीतने वाले हो. फिर बीजेपी ने पिटाई करवा दी कि नहीं अब देखो तुम्हें पिटाई कर रहे हैं. तो ये आई थिंक वो मीम वॉर बहुत इंटरेस्टिंग था इस बार. So meme war is really influencing Mumtaz will go elections. next. I don't want to say because it was बताओ. it's related to my party only. I can't. Sorry. मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं So बोलूंगी. अच्छा आपके लिए फिर एक और एक सुप्रिया जी का question. बहुत अच्छा मीम वायरल होता है. If Shehzad guesses it correctly, then it's anyway. So I'll ask you an but not now. Off the I'll ask you an alternate question. Do you think BJP's meme game is stronger than Congress's? No, now Congress meme games have become stronger. We've learnt it the hard way. We are, हम और कहीं नहीं, but meme में तो आगे हैं. इस बात को मैं स्वीकारता हूं कि राहुल गांधी की पार्टी मीम में आगे है. राहुल गांधी की पार्टी मीम में आगे है. पर देखिए, अब इससे बड़ा फेक न्यूज बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई. बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ही है जिसने देश की आजादी की लड़ाई. एनीवे वो डिफरेंट कैन ऑफ वर्म्स हो जाएगा. मैं अपना मीम बता सकता हूँ. ये शुभांकर जो है ना, ये सारा ट्रेलर हमारा भी दिखा देते हैं. ऐसा है कि द वन मीम दैट लास्ट विथ मी एंड एवरी इलेक्शन हम लोग यूज करते हैं इज हर कॉलीग सुप्रिया शिनेत 99 पे जो जश्न मनाया गया है. भाई साहब, हमारी तीसरी बार सरकार महाराष्ट्र में, तीसरी बार सरकार हरियाणा में, अब दिल्ली में सरकार. तो मुझे लगता है कि ये मीम जो है ना, इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट. मीम से माइंडसेट तक कभी कभी चले जाते हैं लोग. तो वो माइंडसेट जब क्लिक हो जाता है मीम से, तब वो ज्यादा स्टिक करता है. बट पॉलिटिक्स कूल हो गई है इससे. नए लोगों का उनको इंटरेस्ट बढ़ गया. आप देखो ना सोशल मीडिया, इसी बहाने हर इंसान पढ़ना पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ले रहा है, जानकारी कर रहा है. आपको आपके नेताओं के बारे में पता है. हाँ, वो बात तो सही है. So पारियो, मेरी बेटी ने मुझे भेजा था द मोस्ट हिलेरियस थिंग आफ्टर द दिल्ली इलेक्शन, बट मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे. So I will take 2 questions from the audience, but before I take, let me wake you all up. Whose meme game do you think is the strongest? Everybody in favor of BJP, please raise your hands. Ready? Meme game किसका strong है?
ओके, वेरी फ्यू फॉर बीजेपी. कांग्रेस का, आपका, बीजेडी का. Oh, still take us for BJD. So, question. माय क्वेश्चन इज अभी कुछ टाइम पहले जो बोला गया कि पॉलिटिकल कम्युनिकेट के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, बट अभी जो देखने मिल रहा है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो खुद का प्रोपोगंडा वो सोशल मीडिया में ज़्यादा फैलाते हैं कि खुद का क्या है, क्या कराना चाहते हैं. वो जैसे गुमर जैसे फॉल्स न्यूज हो या फेक न्यूज हो या ट्रू न्यूज हो, वो खुद का जो कहना चाहते हैं वो आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के लिए है और कांग्रेस सोशल मीडिया टीम के लिए भी है. वो खुद दोनों के ऊपर एक कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हैं कि ये यूथ को भ्रमित नहीं कर रहे हैं क्या? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है, जैसे बीजेपी आईटी सेल जब 2014 से जब हम लोग देखे थे कि नरेंद्र मोदी जी का फॉलोअर्स यूथ में ज़्यादा क्रेज था, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं सोच रहा हूं कि 2014 में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आई थिंक यूथ और सोशल मीडिया का प्रभाव था. और बट अभी सोशल मीडिया और यूथ का प्रभाव नरेंद्र मोदी से कम पड़ रहा है और ज़्यादा का ज़्यादा दूसरे पार्टी के तरफ जा रहा है यूथ और सोशल मीडिया का. इसलिए बीजेपी सोशल मीडिया यूथ को छोड़ के महिला और कृषक या दूसरे किसी को देख रहे हैं. और तीसरी बात, मैं ये सोच रहा हूं कि बीजेपी का आईटी सेल जैसे एक फोटो उठा राजनीति बना दिया है. जैसे आईटी सेल के नाम पर एक कैलिबरिटी यूथ लीडर अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया में इतना प्रचार प्रसार चल रहा है कि कोई कौन सा नेता के पास खड़ा होके फोटो खींचना है. तो इसी हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अच्छा लीडर, ट्रू लीडर इस सोशल मीडिया की तरह की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं. तीन लोग के सवाल थे शहजाद भाई, एक में तीन हो गए. आपका प्रश्न ये है कि मैं दूसरा वाला सवाल तो समझा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी का यूथ, हाँ, बीजेपी का यूथ से और सोशल मीडिया से यदि कनेक्ट नहीं होता, मुझे लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने के बाद, जो मात्र दूसरी बार हुआ है इस देश के इतिहास में, हमने महाराष्ट्र तीसरी बार, हरियाणा तीसरी बार और दिल्ली जैसा चुनाव जहां पर यूथ और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा असर रहता है, वो जीता है. तो मुझे लगता है कि अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे. पर मुझे लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, इनलाइन दोनों को साधने का काम बीजेपी करती है. तो जो महिलाओं के लिए हम सामाजिक जन कल्याणकारी नीतियां चलाते हैं, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे हमारी गेम वीक हो गई. इस प्रकार से कहना है महिलाओं का अपमान है. 2005 से हमने महिलाओं को सशक्त करने की योजना माननीय शिवराज चौहान जी की सरकार से चलाई थी. तब सोशल मीडिया का क्या दौर था? उसमें पहली बार बच्चियों को उनकी हत्या ना की जाए वूम में, इसके लिए प्रयास किया. गुजरात में प्रयास किया 2001 से. तो मुझे लगता है इस प्रकार से हमें हल्की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है. ये कोई किसी वोट बैंक को साधने का विषय नहीं. दूसरा क्वेश्चन सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्वेश्चन को एकदम ब्रीफ रखिएगा क्योंकि टाइम कम है. बैठ जाइए प्लीज. It is not only social media but a media. जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके टाइम पर मीडिया, सोशल मीडिया उभय में आया. क्या ये सच है? ये दिखाइए, इसके प्रमाण लाइए. नंबर 1. नंबर 2, जब मुंबई आक्रमण हुआ 2008 में 26/11, उस टाइम पर जो मीडिया में उस टाइम पर काफ़ी कंपटीशन था मीडिया में, और उस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था. उस वक्त जो दिखाया वो पाकिस्तान के टीवी में दिखाया गया, जिसके वजह से हिंदुस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ. और जो कि वर्ल्ड प्रेस जर्नल, दे ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू इट. दे हैव क्रिटिसाइज्ड
this media. So now at this juncture, I am not talking only of social media, but question. media, what should be the line that they should not cross? He's asking what is the line that should not be crossed. कुछ जिम्मेदारियां सर हर व्यक्ति विशेष या संस्थान की भी होती है। ये एहसास उनको भी होना चाहिए कि आपकी, जैसे अभी हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की या बाकी हर चीज़ों की, तो वो लकीर का एहसास आपको भी होना चाहिए जो आप बात कह रहे हैं। कि एक एहसास होता, कई बार मीडिया में ऐसी खबरें आती है जहां पर हम भी टीआरपी को दिमाग से हटाकर थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं। ये सवाल का जवाब शायद मैम बेहतर देने के लिए, क्योंकि वो संपादक है, ये फैसला मैम के हाथ में होता है, तो शायद वो बेहतर है। लेकिन फिर भी जो बार बार मैं कह रहा हूं कि कुछ एहसास आपका भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आप टीआरपी से अपने आप को हटाकर एक इंसान या संवेदनशील या देश की जिम्मेदारी सोचकर आप कदम उठाते हैं। अब उसमें अगर कहीं किसी व्यक्ति विशेष ने गलत कदम उठाया है तो उसमें सबको लपेटना भी मेरे ख्याल से जायज नहीं है। एक ये मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी मीडिया का बहुत सारा और भी रोल, जैसे अभी मेरे जहन में एक बात आई थी, अभी रिसेंटली हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनका पॉडकास्ट किया। देश में बहुत सारी मध्य प्रदेश में ऐलान हुए थे कि स्कूटी दी जाएगी, बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे, और इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना अच्छा रहा, अभी मुझे याद आया। हम पॉडकास्ट करने जा रहे थे तो हमारी कोशिश ये थी कि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो हम ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि क्या सवाल आप अपने नेता से पूछना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर सीधे कम्युनिकेशन नेताओं से नहीं होता आपका, कोई सवाल जो आपके मन में आया। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें ये कहा कि हमसे वादा किया गया था कि स्कूटी मिलनी चाहिए, लैपटॉप मिलना चाहिए, और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हमने मोहन यादव जी से जिक्र किया शुरुआत में, इस बात से मैं खुलकर कह रहा हूं, वो कतर रहे थे, बच रहे थे। फिर हमने उस पर ग्रिल किया। बीते हफ्ते खबर आई कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को स्कूटी भी मिली है, लैपटॉप भी मिला है, और अनगिनत ऐसे लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर हमें शुक्रिया कहा। तो ये दोनों पहलू है सर, जैसे एक चाकू से आप सब्जी भी काटते हैं, व्यक्ति को भी काट देते हैं। मीडिया आपको ताकत देता है, अब उस ताकत में कुछ जिम्मेदारियों का एहसास व्यक्ति विशेष को भी करना पड़ता है। उससे आप सकारात्मक चीजों में भी एक नई लकीर खींच सकते हैं, और कुछ चीजें नकारात्मक भी होती है, मुझे लगता है जिनसे सबक लेकर भविष्य में ध्यान देना चाहिए। पर सर का एक बात बिल्कुल सही है लितिशा, सॉरी आई नो एक्सटेंड हो रहा है। एक समय पर एक ऐसे पत्रकार थे, और हम सोशल मीडिया को तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट बना के बोल देते हैं। एक पत्रकार थे, जब 13 दिसंबर हमला हुआ पार्लियामेंट में, वो कबाब खा रहे थे, कबाब की पार्टी तुरंत बंद की गई। वो क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर थे तो पार्लियामेंट का गेट लॉक किया गया, और उन्होंने बोला वाह व्हाट अ ग्रेट डे, आज ऐसी स्टोरी मिली। और लॉक किस लिए कर दिया? ताकि और कोई एंट्री ना कर पाए, ताकि वो स्टोरी ना जा पाए। तो जो 13 दिसंबर वाले हमले, अफजल गुरु के हमले में भी एक ग्रेट स्टोरी और टीआरपी ढूंढता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसे पत्रकारों को भी एक मॉडल बनाना चाहिए कि दिस इज नॉट टू बी फॉलोड, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो। सर लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्रीफ रखिएगा। पूरा छोटा या शुभंकर, हेलो सर। सजाद भाई, और ये तो पार्टी से एफिलिएशन से आएंगे, आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू सी एनी चांस ऑफ एलन मस्क इन 2029 इन इंडिया? हु कैन बी द एलन मस्क इफ एट ऑल इट कम्स अवे, और डू यू सी सच ए सिचुएशन? क्योंकि यू कैंट रूल आउट एलन मस्क नाउ, यू कैंट रूल आउट द वे इट हैपेंड इन यूएसए, there is going to happen Elon again and Musk in again. India in 2029? Yeah. In what capacity, sir? He definitely cannot participate in elections, but... No. Who will be the Elon Musk for India if it is such who a will be the chance? Elon संदर्भ ये है Yes, कि sir. कोई उस तरह की भूमिका कौन निभाएगा। Yeah. जी सर आंसर कीजिए। इंडिया में थोड़ा मुश्किल लगता है सर। इंडिया में पैसे छापने वाले लोग शांत रहते हैं। Well, thank you so much, everybody, for your participation and your questions. The conclusion that I draw from this session is that with great power comes great responsibility, and there is no one direction or one decision for any one action. So we have to be responsible, and we hope to have more laws that will curb fake news, and hope to see more technology and in governance, in politics, that will increase transparency. Thank you, everyone, and thanks to all of you for giving your time and to coming to Odisha and to this conclave. Thank you so much. Round of applause for Litisha too for a great session. Thank you, Thank you. Litisha. Thank you for having us. What an absolutely thought-provoking session that was. Thank you so much, Azad, Mumtaz, Subhankar, for sharing your thoughts with us, and
for being so unapologetically honest. And thank you, Nitisha, for keeping the questions sharp and the humor light. Can we have another round of applause for this absolutely special session?